پاکستان ایک ایسا خطہ ارض ہے جہاں قدم قدم قدیم تہذیب کے آثار ملتے ہیں. قدم قدم موہنجو ڈارو، مہر گڑھ، ہڑپا، ٹیکسلا. وادی سندھ کی تہذیب ایسی ہے کہ آپ ایکسپلور کرتے جائیں. زندگی ختم ہو جائے گی، یہ تہذیب ختم نہیں ہوگی. کئی تہیں ہیں، تہ در تہ تہذیبوں کے آثار ہیں. مجھے آپ کو دکھانی ہے 2700 سال پرانی ایک تہذیب. تکشا کلا کا شہر، ٹیکسلا کا شہر، گندھارا تہذیب. چونے مٹی اور پتھروں میں محسوس کرنا ہے ایک لمس جو جاگزیں ہے ان پتھروں کی ڈور میں، زندگی کی حرارت بن کر، حسن کی حکایت بن کر، روشنی کی عنایت بن کر، تعلق کی غایت بن کر. تعلق ایک خوشبو جس سے بندھے ہیں میں اور آپ اور وہ جو ہزاروں برس پہلے یہاں تھے. ہم سب اس مٹی کی خوشبو سے بندھے ہیں، میں آپ اور وہ. یہ خوشبو زمین سے تعلق میں بھی جاگزیں ہے اور عقیدے کے پھولوں میں بھی. دھرما راجیکا کی اسٹوپا میں پڑی راکھ میں بھی ہے اور بدھسٹ بھکشوں کی تلاش میں بھی، ان کی جستجو میں بھی. ہمیں کھنڈروں میں اس خوشبو سے وارفتہ ہونے کا تجربہ کرنا ہے. میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے ویورز کو صرف معلومات پہنچاؤں اور یہاں کی کچھ ویڈیو بنا کے بھیج دوں. ہرگز ایسا نہیں ہے. اگر آپ میرے ساتھ یہ تجربہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اگر آپ اس مٹی کی خوشبو سے وارفتہ ہوتے ہیں، تو میں سمجھوں گا یہاں آنے کا حق ادا ہو گیا. ویسے میں یہاں آنے کے لیے منسٹری آف ٹورزم پاکستان کا بہت شکر گزار ہوں. میں بہت شکر گزار ہوں اپنے بڑے بھائی، اپنے دوست وسیع شاہ صاحب کا، جو اسٹیٹ منسٹر آف ٹورزم ہیں آج کل، اور انہوں نے مجھے ترغیب دی کہ میں یہاں آؤں اور بدھا کے نشانات کو، اسٹوپاز کو، خانقاہوں کو، جامعات کو ایکسپلور کروں. ہمیں تجربہ کرنا ہے اس خوشبو کا جو اس مٹی میں بسی ہے، ورنہ پتھر تو عقیدوں کے نشان بن کر ساری دنیا میں پھیلے. ظفر بھائی آ جائیں، ناشتہ کر لیں. ناشتہ آ گیا تو اس میں نکل دیں. آ جاؤ یار، آ جاؤ جلدی سے، ناشتہ کریں پھر نکلنا ہے یار. بیٹری کتنی بیٹری ہے؟ چارج نہیں؟ چارج ہے صرف 2 لگا کے جا رہا ہوں، باقی آ کے مل جائیں گے. یار جب 4 ہیں تو آ جاؤ، ناشتہ تو کرو، نکلیں یار، بہت کم ٹائم ہے. سر صرف 2 منٹ آپ کریں، میں آ رہا ہوں. صرف 2 منٹ. ایک تو یہاں پہ سوئچ بھی کوئی نہیں ہے. ادھر دیکھو یار، ادھر ہوگا کوئی نہ کوئی سوئچ. یہ ایک ہے بس لگاؤ، آ جاؤ ناشتہ کرتے ہیں. رات ہم ہیوی انڈسٹریز کمپلیکس ٹیکسلا میں رکے تھے. ظفر بھائی ہیں، ظفر بھائی امجد اسلام صاحب کے ساتھ رہے ہیں بہت عرصہ. جی سر. 8-9 برس رہے ہیں. بڑی بات ہے اتنے بڑے آدمی کے ساتھ رہنا. جی بالکل. کیسے پایا؟ ہمارے تو خیر وہ محسن تھے، دوست تھے. آپ نے کیسا پایا امجد صاحب؟ ہم نے بہت اچھا ان کو، یعنی کہ ان کی اپنی جو ہے نا خاصیت، وہ ایک بہت ہی اعلیٰ قسم کی تھی. میں نے ان کو کبھی تقریباً اتنے عرصے میں 8-9 سال میں کبھی ان کو غصے میں نہیں دیکھا. اور لین دین کے معاملے میں بہت، لین دین کے معاملے میں بہت. ایک دفعہ میرا پروگرام بن گیا، میں نے گاڑی لی ٹیکسی چلانے کے لیے. اچھا. تو میں نے ان کو بتایا سر، میں جب میرا آخری ٹائم ان کے ساتھ رہ گیا تھا، میں نے ان کو کہا سر میں جا رہا ہوں، میں نے اپنا کوئی کاروبار کرنا ہے تو لہٰذا ایکسکیوز کرتا ہوں. انہوں نے بولا بیٹا جاؤ ٹھیک ہے، لیکن تم کرو گے کیا؟ میں نے کہا سر میں نے گاڑی لی ہے، وہ میرا کوئی پروگرام ہے کہ میں ٹیکسی وغیرہ چلاؤں گا، وہ اپنے بچوں کا جو کراؤں گا. کہتے بیٹا ٹیکسی کے پیسے کار تم نے خریدی ہے، پرچیز کی ہے، اس کے پیسے مجھ سے لے لینا، تو آپ میرے ساتھ ہی رہو، نہ جاؤ. اچھا. کچھ عرصے بعد آپ خود پچھتاؤ گے کہ میں نے یار یہ کام چھوڑا ہے. تو
आज ये पिकअप पर जा रहा हूँ। अच्छा काम। अमजद इस्लाम अमजद बहुत ही प्यारे दोस्त थे, बहुत अच्छे हमारे मोहसिन थे, दोस्त थे, शायर थे। अगर कभी मेरी याद आए तो चांद रातों की नर्म दिलगीर रोशनी में किसी सितारे को देख लेना। अगर वो नखले फलक से उड़कर तुम्हारे कदमों में आ गिरे तो ये जान लेना वो इस्तारा था मेरे दिल का। अगर ना आए मगर ये मुमकिन ही किस तरह है कि तुम किसी पर निगाह डालो तो उसकी दीवारें जान न टूटे और वो अपनी हस्ती न भूल जाए। अगर कभी मेरी याद आए गुरेज करती हवा की लहरों पे हाथ रखना, मैं खुशबुओं में तुम्हें मिलूंगा। मुझे गुलाबों की पत्तियों में तलाश करना, मैं ओस के कतरों के आईनों में तुम्हें मिलूंगा। अगर सितारों में ओस के कतरों में खुशबुओं में न पाओ मुझको तो अपने कदमों में देख लेना, मैं गर्द होती मुसाफितों में तुम्हें मिलूंगा। कहीं पे रोशन चिराग देखो तो जान लेना कि हर पतंगे के साथ मैं भी बिखर चुका हूं। तुम अपने हाथों से उन पतंगों की राख दरिया में डाल देना, मैं खाक बनकर समंदरों में सफर करूंगा। किसी न देखे हुए जजीरे पे रुक के तुमको सदाएं दूंगा। समंदरों के सफर पे निकलो तो उस जजीरे पे भी उतरना, अगर कभी कभी मेरी याद आए। बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ही मोहब्बत करने वाले अमजद साहब। ट्रैक्सला म्यूजियम पहुंचे हैं जहां शाहजी मौजूद हैं, टूरिज्म से मुताल्लिक आगाही भी दे रहे हैं। एक शायर, एक मुफक्किर ही टूरिज्म की, हेरिटेज की हसासियत जान सकता है, वरना इस नफ्सा नफसी और शनाख्तों की हमा हमें में किसे ख्याल है राग से तस्वीरें बनाने का, मट्टी की मूर्तों से मुसर्रतें कशीद करने का, पत्थरों की सांसें सुनने का। ये ओरिजिनल जोलिया में आपने देखा है। अच्छा ये वो रेप्लिका है, ये ओरिजिनल। ये आर्या ने जलाया था। टेक्सला म्यूजियम में बुद्धा के 10 मुजस्समे रखे हैं जो आर्कियोलॉजिकल साइट से निकाले गए हैं। ये डोनर है, फूल पेश करने वाला। लोटस फ्लावर। प्रिंस। यह बुद्धा नहीं बना है, तो ये आगे बुद्धा मेडिटेशन को लीड सब कुछ छोड़ दिया इसने। अच्छा मेडिटेशन को। बड़ी मुंसालिक हुजूर सालों तरीके से हुआ कुछ हुआ कब बहुत ज़्यादा बेहतरीन सारा आर्कियोलॉजिकल साइट्स देखिए, बड़ा मजा। ये भीर माउंट है, भीर माउंट, जहां राजा तक्षाशिला के राजा अंबी ने अलेक्जेंडर का इस्तकबाल किया था। इस जगह वाला जो है ना, ये हमने रिपेयर किया। अच्छा नीचे बुनियादी वो 2700 साल पहले। अभी अलेक्जेंडर जलालाबाद ही में था कि अंबी ने कहा, अगर अलेक्जेंडर से ज्यादा मालदार मैं हूं तो मैं अपनी दौलत उससे शेयर करूंगा, और अगर अलेक्जेंडर मुझसे ज्यादा मालदार हुआ तो मुझे दौलत मांगने में कोई बाक नहीं होगा। अलेक्जेंडर ने यह सुना तो बहुत खुश हुआ और राजा अंबी को अपना दोस्त बना लिया। सवाद में यूसुफ से कबाइल से लड़ने के बाद अलेक्जेंडर अपने जनरल हिफैशन का दरिया पे बनाया हुआ पुल क्रॉस करके टेक्सला पहुंचा। राजा अंबी ने इसे नजराने के तौर पर 3000 बैल, 10,000 भेड़ें और बहुत सी चांदी दी। ये सब हमें पता चलता है मेगास्थनीज से। मेगास्थनीज अलेक्जेंडर के बाद यहां आया चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। वो भी एक लंबी कहानी है, वो किसी और
वीडियो में आपको सुनाएंगे। वो यहाँ फिरता फिराता रहा, उसने बहुत से हक़ाइक़ को कलमबंद किया। इंडिका एक किताब लिखी मेगास्थनीज ने, जहां से हमें बहुत सी चीजों का पता चलता है। मेगास्थनीज से ही पता चलता है कि यूनानी टैक्सला को देखकर दंग रह गए थे। ऐसी खूबसूरत सरजमीन जहां बुद्धिस्ट, ब्राह्मण, जरतुश्त के मानने वाले इकट्ठे रहते थे, जैन मत के मानने वाले रहते थे। दुकानों पर ताले नहीं लगाए जाते थे, घर खुले रखे जाते थे, मामलात अफामो तफहीम से निपटाते थे। गुलामी का कोई तस्वर इस जमीन पर नहीं था। इमेजिन कीजिए, 2500 साल पहले गुलामी का कोई तस्वर नहीं था। जब मिस्र के बाजारों में, यूरोप में, अरब में, हर जगह गुलाम बिका करते थे बाजारों में, यहां कोई तस्वर नहीं था। यह ऐसी रिच सिविलाइजेशन थी क्योंकि यहां के कदीम फलसफी इसे गैर इंसानी समझते थे। जात पात का निजाम था लेकिन गुलामी नहीं थी। मुख्तलिफ रंगों से बाल रंगने का रिवाज था। नौजवान सफेद, जामनी, नीले, सुर्ख और हरे रंग के बाल रखा करते थे, जो आज भी फैशन है। ये आगे धर्माराजी का स्टूपा है। इस सड़क पर चलते हुए मैं अजीब से एहसास तफाखुर का शिकार हूं, और वो ये है कि मैं इस जमीन से ताल्लुक रखता हूं जहां हजारों बरस पहले इंसान ने तहजीब के खतो खाल बनाए, जिंदगी गुजारने को उसूल बनाए, मेरी जमीन पे बनाए गए उसूल। यहां के बासियों ने जिंदगी गुजारने को उसूल बनाए। धर्माराजी का स्टूपा देखने के लिए ऊपर जाना होगा। अगर सर जॉन मार्शल 20वीं सदी के अवाइल में खुदाई का काम शुरू ना करते तो शायद हमें कभी पता न चलता कि कीमती असासे, कैसे कैसे कीमती असासे जमीन की तह में दबे हुए आज इन पर हाउसिंग सोसाइटीज खड़ी होती। यह है सामने धर्माराजी का स्टूपा। इसके इर्द गिर्द बहुत से स्टूपास हैं, लेकिन यह तो बहुत ही अजीमुल जुस्सा स्टूपा है। धर्माराजिका का मतलब है राजा का धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य के पोते अशोका ने बुद्ध मत कबूल करने के बाद अपनी राजधानी मगध से आकर यह स्टूपा बनवाया था। मगध आज का बिहार आप समझ लीजिए। यहां गौतम बुद्ध की राख और दांत लाकर रखे गए। ये ओरिजिनल स्टोन है, ये कंजूर स्टोन है, और ये लोकल स्टोन है जो बड़े बड़े लगे हुए। अच्छा, ये कंजूर पे जो ये तो अगले कई हजार साल तक इसे कुछ नहीं होगा। इस वक्त जब मैं स्टूपा के गिर्द फिर रहा हूं, मुझे महसूस हो रहा है जैसे ये 2500 साल पहले मई का महीना और पूरे चांद की रात है। गौतम बुद्ध 564 कबल मसीह में मई के महीने में पूरे चांद की रात को पैदा हुए थे। उन्हें निर्वाण भी मई में पूरे चांद की रात को मिला। जनाब गौतम बुद्ध 80 बरस की उम्र में इस जहां से गए तो भी मई पूरे चांद की रात थी। विसाख मनाते और स्टूपा के दामन में फूल निछावर करते सैकड़ों बुद्धिस्ट भिक्षु दिखाई दे रहे हैं मुझे, जो बादशाह अशोका के साथ इसके गिर्द घूम रहे हैं। 2500 साल पहले यहां खड़े होकर अशोका ने तकरीर की थी। उसने कहा, मेरे 99 भाई थे। मेरे भाई ने तक्षाशुला का बादशाह बनना था, लेकिन वो मर गया, और फिर मैंने जोरे बाजू से यहां कब्जा कर लिया। मैं एक बदहैत इंसान था। मैंने कलिंग की जंग में 1.5 लाख लोगों को कत्ल किया। इतने ही भूख और बीमारी से मरे, और मैंने लोगों से पूछा कि क्या मैं खूबसूरत हूं, तो वो मुझे खूबसूरत कहने की बजाय थर थर कांपने लगे। फिर मुझे एक बुद्धिस्ट भिक्षु ने कहा, खूबसूरती मोहब्बत में पिन्हा है, खौफ में नहीं। अशोका ने इंसानों से, जानवरों से, दरख्तों से मोहब्बत का दर्स यहीं दिया, इसी स्टूपा के पास खड़े होकर। इसी मुनासिबत से विसाख मई में पूरे चांद की रात में यहां मनाया जाता है। हमारे दोस्त डॉक्टर नदीम उमर ने विसाख मनाना शुरू किया, तरगीब दी विसाख मनाने की दोबारा से। खुदारा इसे बैसाखी के मेले से कंफ्यूज ना कीजिएगा।
मेरे पंजाबी भाई मुझे लगता है इसे बैसाखी से कंफ्यूज कर रहे होंगे। बैसाखी अप्रैल में गंदुम के कटने पर मनाया जाता है, ये विसाख है, विसाख। अच्छा ये फरमाएं कि और क्या क्या किया जा सकता है इस जगह के लिए? अच्छे रेस्टोरेंट बने जाएं, उन लोगों की रहने की जगह हो, उनको खाना पीना हो, चाहे सिक्योरिटी का निज़ाम अच्छा होना चाहिए उनके लिए। जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स यहाँ आते हैं जी वो उनका जज्बा क्या होता है जब आते हैं? सर, हमारे पास थाई के मंक्स आए थे, 3 माह रह के गए हैं टेक्सला म्यूजियम के अंदर। तो बस न पूछें कि हम तो नाम के हैं, इबादत आखिर देखने वाली उनकी है, उनकी देखने वाली इबादत। और जो वो लोग अपनी इबादत में मशगूल और सारा काम अपना खुद करते हैं। अच्छा, हमारे गेस्ट हाउस में रहे, वहाँ पे हमारा स्वीपर भी था, मतलब एक कुक भी था, सारा काम उन्होंने अपना, कमरे आप, सफाई अपनी आप, मतलब एक बार। और जब इबादत करते हैं तो मशगूल। अच्छा, फिर उनको कोई दुनिया माफिया की कोई फिक्र नहीं, बिल्कुल अल्लाह की लय में जिस तरह बंदा गुमसुम हो जाता है ना, इस तरह। सर हमारी ख्वाहिश होती है, मुझे 37 साल हो गए, हमारी ये ख्वाहिश है, हमारे पास कोई टूरिस्ट आए, क्या अपना आए चाहे बाहर से आए, वो हमारा गेस्ट है, मेहमान है, वो खुश होके जाए। बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं नजीब भाई। दुनिया में 50 करोड़ से ज्यादा आबादी है बुद्धिस्ट की। यहाँ आने के लिए सब बेचैन हैं, क्योंकि स्तूपा का मकसद तो ये था कि उनके रेलिक्स और उनकी जो चीजें हैं वो यहाँ। मैंने तो सुना कि बहुत से सोने चांदी जी, ये जो है ना, इनमें स्टेचू लगे थे। ठीक है जी, ये म्यूजियम में ले गए। अच्छा, यहाँ से स्टेचू म्यूजियम में ले गए। हालांकि हमारे यहाँ तो मुश्किल से 3-4 हजार बुद्धिस्ट हैं, वो भी कहीं नौशहरों फिरोज में रहते हैं। अगर हम बुद्धिस्ट को यहाँ आने दें, उनके लिए आसानियां पैदा करें, तो सोचें हमारा रेवेन्यू कहाँ से कहाँ जाएगा। हम बार बार रेवेन्यू की जो बात करते हैं, डॉलर्स की, फॉरेन करेंसी कमाने की बात करते हैं, तो इसलिए कि हमें दूसरों से भीख मांगना ना पड़े, हमें कर्ज ना उठाना पड़े, हमें कर्ज की मद में सूद ना देना पड़े, हमें अपने लोगों पर जुल्म ना करना पड़े। इसलिए हम कहते हैं कि टूरिज्म को प्रमोट करें, आर्कियोलॉजी को, हेरिटेज को, हिस्ट्री को। इस लैंड पे जो कुछ मौजूद है, किसी व्यूअर ने कहा कि पैसे कमाने के लिए क्या क्या कहना पड़ता है, नहीं। आने वाला वक्त आपको बताएगा कि हम इस वक्त जो चिल्ला रहे हैं कि खुदारा अपने हेरिटेज को बचाइए, अगर आपके सामने वो आदाद शुमार आ जाए कि भारत, नेपाल और दूसरे ममालिक जनूबी एशिया में टूरिज्म से कितना कमाते हैं, तो आप सर फोड़ेंगे दीवार में। आपको सोचना पड़ेगा आपके पास दुनिया को देने के लिए क्या है, ये सवाल उठाइए। जो कुछ आप बनाकर भेजा करते थे वो खत्म हो गया, आप सिर्फ इंपोर्ट करते हैं, आपके पास एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है। आपके पास दुनिया को देने के लिए क्या है? ये वीडियो देखने के बाद अगर आप ये सवाल नहीं उठाते तो मैं समझूंगा कि मेरा वीडियो बनाना जाया हुआ है। हमारे पास दुनिया को दिखाने के लिए तहजीबें हैं, हेरिटेज है, हिस्ट्री है, खूबसूरती है इस मुल्क की, डेजर्ट्स हैं, नखलिस्तान है, वादियां हैं। इधर देखिए, टेक्सला की तहजीब को देखिए। ये तालाब हुआ करता था और ये पानी कंजर्व करने का एक तरीका। और ये उनके सिंदूर लगाने के। अच्छा, सिंदूर लगाने के। जी, सिंदूर लगाने के जगह बनी। मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि वो किस मकसद के लिए था। वो जो वाटर टैंक से पानी वहां पे स्टोर करते थे। अच्छा, स्टोर करते फिर यूज करते थे। इधर एक और स्तूपा है जिसके नीचे छोटे छोटे मुजस्समे बने हुए। तालाब के इस तरफ 2 बड़े बड़े मुजस्समे और पूजा करने की तंग सी जगह है। 460 कब्ले मसीह में यहां वाइट हुन्स आए। उन्होंने ऐसी बर्बरियत का मुजाहरा किया, ऐसी तबाही मचाई कि ये तहजीब दोबारा फिरक नहीं सकी। उन्होंने इन मुजस्समों को बहुत नुकसान पहुंचाया। उन कौम के मजालिम का जिक्र आप जगह जगह सुनेंगे। एक हाथी हादसाती तौर पर खाई में गिरा और चीखा,
اس کی دلدوز چیخیں ہند سردار کو اتنی بھائی کہ سینکڑوں ہاتھی صرف ایک چیخ سننے کے لیے پہاڑ سے گرائے گئے. یہ آثار آپ کو کٹے پھٹے جلے کٹے ملیں گے. یہ ساری بربریت ہند قوم کی تھی. حالانکہ ہند قوم سے پہلے یہاں پارتھی، ساکا، یونانی، آریائی، مقامی سب لوگوں نے بدھزم کی بہت خدمت کی. ادھر بدھا کے پاؤں ہیں. یہ دیکھیے یہ کتنا بڑا مجسمہ ہوگا جسے ہنس کی وحشت نے برباد کر دیا. خیال تو ہم نے بھی نہیں کیا، لیکن بہرحال اس طرح تباہی نہیں پھیلائی. یہ بہت بڑا مجسمہ تھا جی. ان کے پاؤں سے اندازہ ہوتا ہے کہ مجسمہ کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. یہاں سے دھرما جی کا اسٹوپا بھی بہت ہی بھلا معلوم ہوتا ہے. 3 سے 5ویں صدی قبل مسیح میں عالموں نے ایک نتیجہ اخذ کیا، اور وہ یہ کہ یونانی فلسفیوں نے ٹیکسلا کے فلسفیوں سے کچھ تعلیمات مستعار لیں. بھگوت گیتا اور اپنشد کی تعلیم کے مطابق کائنات 4 عناصر یعنی پانی، مٹی، ہوا اور آگ سے بنی ہے. اواگون اور آہنگ کے اصولوں پر چل رہی ہے. یہی فلسفہ بعینہ ہی ہمیں یونانی فلسفیوں کے ہاں ملتا ہے. تھیلیس، انیگزیمینڈر، فیثاغورس. یونانی اور ہندوستانی فلسفیوں کا تعلق اس امر سے ثابت ہے کہ 5ویں صدی قبل مسیح میں دونوں علاقے یعنی ٹیکسلا اور یونان آج کے ایران میں شامل تھے. دھرما راجیکا میں یہ خانقاہ دیکھیے، ایسی شاندار خانقاہ، اور یہ آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گی. درمیان میں تالاب ہوگا اور ارد گرد بھکشوؤں کے رہنے کے لیے عبادت کے کمرے. قرۃ العین حیدر کے ناول آگ کا دریا میں بدھسٹ بھکشوؤں کی تعلیم حاصل کرنے کی جستجو پتہ چلتی ہے. جب دنیا کی رغبتیں تیاگ کر، حسن و عشق کے مرحلے چھوڑ کر، اپنا گھر بار چھوڑ کر، سادہ لباس اور کھڑاوے پہنے ان پہاڑوں میں علم حاصل کرتے بھکشو آگ کا دریا میں ملتے. ہری شنکر، گوتم نیلمبر. امیر زادوں کی دولت سے نئی عمارات بنتی، تدریس کا نظام چلتا، اور لیس پریولیجڈ بھکشو مانگ کر کھاتے. چھوٹی موٹی ضرورت پوری کرنے کے لیے کسی کے کام میں ہاتھ بٹا دیتے تھے. وہ بھکشو جو واپس جا کر اپنے ماں باپ کو زندہ دیکھ لیتا بہت خوش قسمت سمجھا جاتا تھا. ایسے درخت جن کی چھاؤں میں ہم یہاں بیٹھے ہیں ہزاروں برس میں کئی بار پیدا ہوئے، فنا ہوئے. یہاں دھرما راجیکا خانقاہ سے چاندی کا گول خروشتی زبان میں لکھا ہوا ایک پتر ملا. ساکا دور میں ایزس اول کے زمانے کے سکے ملے اور ان گنت تبرکاتی مجسمے ملے، جس کی بنیاد پر دھرما راجیکا خانقاہ کہا گیا ہے اسے. یہ اسٹوپا دیکھیے اور اس پر بنے چھوٹے چھوٹے بدھا کے مجسمے ملاحظہ کیجیے. 1794 میں بنارس کے راجہ چیٹ سنگھ کے وزیر جگت سنگھ نے کسی وجہ سے یہاں کھدائی شروع کی تو اسے ایک ہرے رنگ کا صندوق ملا جس میں بدھا کے تبرکات اور مجسمے تھے. وہ صندوق آج بھی کلکتہ میوزیم میں پڑا ہے، کولکتہ میوزیم میں. ہمارے بنگالی بھائی ناراض ہو جائیں گے اگر میں کلکتہ یا کلکتہ کہوں گا. کولکتہ میوزیم میں دھرما راجیکا سے لے جائے گئے بہت سے تبرکات لندن میوزیم میں پڑے ہیں، جہاں لکھا بھی ہے کہ یہ تبرکات ٹیکسلا کے دھرما راجیکا سے حاصل کیے گئے. اگر دھرما راجیکا اسٹوپا پر چلتے ہوئے بائیں جانب دیکھیں تو بہت سے کمرے نظر آتے ہیں جہاں بدھسٹ مونکس رہا کرتے تھے. ان اسٹوپاس میں بڑے مونکس کے راکھ، تبرکات، مجسمے، ہیرے جواہرات سمیت بہت سی ریلکس موجود تھیں. ہنس کی بربریت کے بعد یہاں 1940 کے زلزلے نے بہت تباہی مچائی. دھرما راجیکا اسٹوپا کو بہت نقصان پہنچا کیونکہ اس کی بنیادیں اتنی مضبوط ہیں کہ زلزلے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ صاحب بھی انڈو گریک سویلائزیشن کے آثار دیکھنے آئے ہیں. So, are you interested in Buddhism? Well, I'm interested in the Greek Bactrians. Greek, The Greek, Indo-Greek, so Indo-Greek, yeah. Indo-Greek civilization. Yeah. And history and heritage. Absolutely. So I'm going to Afghanistan next.
That's wow. So have you been to Mardan and Taf Bhai and Sawat? Not yet. No. Do go there. We'll You try. will find the traces of Buddhism there as well. Brilliant. I look forward to that. ऐसे बहुत से सयाह यहाँ आना चाहते हैं, बहुत से सयाह, बहुत से बुद्धिस्ट यहाँ आना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। उनके आने से पहले हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए। हम धर्मराजिका से हम जा रहे हैं उस शहर को देखने जिसे इंडो ग्रीक्स ने बसाया, सरकप और मोड़ा मुरादो, 7 आसमान 7 जमीन देखने, 1500 साल पुराना कुआं देखने, कदीम तरीन यूनिवर्सिटी देखने जा रहे हैं। मोड़ा मुरादो और जूलिया, आप हमारे साथ रहिए, अपने कमेंट कीजिए, राय दीजिए।